concept of interest on capital. Interest on capital as per partnership agreement is allowed by the firm to the partner at the given percentage recorded in an agreement. If there is no agreement amongst the partner as regard to interest on capital will not be allowed. ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं. अब बड़ा ब्रीफ तरीके से अगर मैं बात को आगे बढ़ाऊं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मींस IOC. It will be always calculated on the value of an opening capital. पक्का कर लीजिए पॉइंट. अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो डायरेक्टली उसके ऊपर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए. अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो पहले आप ओपनिंग कैपिटल फाइंड कीजिए फिर इंटरेस्ट निकालिए. पर मेन प्रॉब्लम है कि कैसे पहचाना जाए कि गिवन कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल है. इजी टास्क. इफ द कैपिटल इज गिवन ऑन 1st January, if it is a calendar year, that will be opening capital. If capital is given on 1st April for financial year, it will be opening capital. Be careful. Otherwise, if the capital is given on 31st December for the sake of calendar year, it will be closing. 31st March, it will be closing. But closing word may and may not be there in the question paper. Be careful. You have to diagnose, you have to basically understand, and you have to recognize the capital given in fact. But the question paper will never ask you, never direct you to find the opening capital first and then calculate the interest on capital. It will be mandatory that closing capital if given, then the interest on capital will be calculated on opening capital and you yourself have to find the opening capital. अब बताएंगे कि अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हम ओपनिंग कैपिटल को कैसे ढूंढें. थोड़ा थोड़ा थीम में आपको लिखकर दिखाता हूं. ये देखिए, ये आज आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ calculation of interest on capital अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो IOC. ये आपका नोट IOC, इसको हाईलाइट करते हैं सो दैट यू मे कम टू नो. IOC will always be calculated on an opening capital. If this will be again highlighted, if opening capital is given, then directly calculate interest thereon. अगर आपको IOC कैलकुलेट करना है और आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो आप डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए. इफ क्लोजिंग capital is given, then first
calculate opening capital later and interest thereon. I remind you, question will not direct you to find the closing capital if given the opening capital. I request you, it is you who have to recognize. Now listen one thing more. Signals of opening capital. If date of opening capital, if date of opening capital is 1st January, in case of calendar year, if date of opening capital is 1st January, in case of calendar year, it is an opening capital. This is easy to recognize. Next, if date of ओपनिंग कैपिटल मैंने लिखा ताकि आप फोकस करें, पर अगर 1 जनवरी है तो वो कैलेंडर ईयर होना चाहिए, तब जाकर वो ओपनिंग कैपिटल है. इफ डेट ऑफ कैपिटल इज 1st April, in case of financial year, comma, this is also an opening capital. But be careful, you have to keep in mind the concept of calendar year and financial year. If question paper writes the given capital is opening, then no tension. If the question paper writes the given capital is closing, no tension. But if the question paper gives the question in the form of balance sheet, then be careful, you have to see the balance sheet that will be either 31st December in case of calendar year or 31st March in case of financial year. That itself indicates that the given capital in the balance sheet is a closing capital. These are the signs which I am providing to all of you. But once in the CBSE board, this language came. Be careful for this language. I am highlighting it by marking 3 rights. The thing is, the books of the partners, Ram and Mohan, shows balances of their capitals, rupees 2 lakh and
rupees 1 lakh रेस्पेक्टिवली। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इस लैंग्वेज को देखते समय हमें अमाउंट ऑफ कैपिटल तो बताए गए, पार्टनर के नाम बताए गए, परंतु हमें कोई भी इंडिकेशन ये नहीं मिल रहा ये गिवन कैपिटल क्लोजिंग है या ओपनिंग है, क्योंकि ना कोई डेट है, ना कोई टर्म है, ना फॉर्म ऑफ द बैलेंस शीट है। पर हम कैसे पता लगाएं कि गिवन कैपिटल आपकी ओपनिंग कैपिटल के क्लोजिंग? तो बोर्ड में लैंग्वेज आई, इन अराइविंग एट दीज फिगर्स, इसका मतलब है जब हमें ये फिगर्स मिली, इन अराइविंग एट दीज फिगर्स द प्रॉफिट फॉर द ईयर, the profit for the year has already been transferred to partners capital accounts, to partner capital accounts in their profit sharing रेशो। इस लैंग्वेज में हमें देखो क्लू मिला कि जब इन अराइविंग एट दीज फिगर्स, कि जब ये हमें पार्टनर्स की कैपिटल 2 लाख और 1 लाख मिली तो फर्म ऑलरेडी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में साल का प्रॉफिट ट्रांसफर कर चुकी थी। अगर साल के अंत में फर्म पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर कर चुकी है तो दिस इंडिकेट्स द प्रॉफिट हैज ऑलरेडी बीन एडेड टू द कैपिटल, और अगर ये प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो चुका है तो ये हमें सिग्नल देता है कि गिवन कैपिटल क्लोजिंग है। आई रिक्वेस्ट यू इस लैंग्वेज को बोर्ड में लेकर जाना, नहीं तो आपका ये न्यूमेरिकल गलत होने वाला। आई रिक्वेस्ट यू, नो क्लू, नो डेट, नथिंग एल्स, पर ये जो लाइन है सिर्फ आपको बताती है कि मैंने कैसे पता लगाया। इन अराइविंग एट दिस फिगर्स द प्रॉफिट फॉर द ईयर हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड, का मतलब बांटा जा चुका है, टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट in their profit sharing ratio, a very important concept today I'm giving. I don't know who is giving or who is not giving, but I'm concerned with me. I'm just passionate. I want to let you all know about this language. This IOC is important for MCQ, for making P&L appropriation account, for making partners capital account, and whatsoever it is. If your P&L appropriation account because of IOC is wrong, then mistake number 1, IOC wrong. If after making P&L appropriation account, you prepare the partner's capital account, the partner's capital account will be also wrong because you are putting the wrong value of IOC to the P&L appropriation account and similarly to the capital accounts also. I request you to be very careful. Proceeding now, next proceeding I'm doing now. Okay, now the how to calculate an opening capital, how to calculate an opening capital if closing capital is given in the
क्वेश्चन, इस फॉर्मूले को आपने प्रॉपर लर्न तो करना है, पर अगर एमसीक्यू करने हैं या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो इसको प्रॉपर आंसर शीट पर लिखने की जरूरत नहीं है, इट शुड बी इन योर ब्रेन। पर अगर पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि आईओसी कैलकुलेट करके दिखाओ, तो आपको फॉर्मूला मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो आपके नंबर कटेंगे। अब वह फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूले में लिखा मैंने क्लोजिंग कैपिटल जो आपको गिवन है, एड ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। फॉर्मूला लिखने के बाद मैं आपको टीच भी करूंगा कि ये मैं प्लस क्यों कर रहा हूं। आई नो हाउ टू एड परमानेंट withdrawal of capital if any। मेरी आदत है कि इस टर्म के साथ मैं इफ एनी वर्ड लिखता हूं, क्योंकि ज्यादातर परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्वेश्चन पेपर में नहीं देखा जाता। एड लॉसेस फॉर द ईयर। अब ये ऐड क्यों किया? क्लोजिंग कैपिटल तक हम ड्राइंग को माइनस करके पहुंचे थे, परमानेंट विड्रॉल कर को माइनस करके पहुंचे थे, लॉस को माइनस करके पहुंचे थे। तो हम देखिए यहां ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक जाते हैं तो हमारा ये रूट है। वी आर गोइंग टू द राइट फ्रॉम ओपनिंग टू क्लोजिंग। तो जो हम माइनस कर चुके थे उनको हमने प्लस करना है, क्योंकि हमने वापस आना। बी केयरफुल। जो हम माइनस कर चुके थे ओपनिंग से क्लोजिंग तक जाने के लिए, अब हमने क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग पे वापस आना है। तो आई एम रिपीटिंग, जो वैल्यू हम माइनस करके हम क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंचे, तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे आने के लिए हमने उनको ऐड करना है, इसलिए मैंने ऐड किया। लेस profit for the year, less additional capital if any वर्ड क्यों लिखा? क्योंकि आजकल के पेपर जो बनते हैं उनमें आपको ड्राइंग मिल सकता है, लॉस मिल सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है। ये बात तो तय है, हर बच्चा जानता होगा। अगर लॉस होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट होगा तो लॉस नहीं होगा, क्योंकि एक फर्म के कभी भी 2 रिजल्ट नहीं होते। पर परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल मे एंड मे नॉट बी देयर, एडिशनल कैपिटल मे एंड मे नॉट बी देयर। तो जब आप क्लोजिंग कैपिटल में प्लस माइनस करेंगे, अब मैंने प्रॉफिट को लेस क्यों किया? क्योंकि ओपनिंग से क्लोजिंग तक जाने के लिए जो प्रॉफिट मैंने जोड़ा था, तो मैं लेफ्ट से राइट गया, अब मुझे इधर से वापस आना है, तो जो मैंने जोड़ा था अब मैंने वो माइनस कर दिया। अब आपका फॉर्मूला टू कैलकुलेट IOC. Formula is IOC is equal to opening capital into rate upon 100। जैसे किसी की सपोज ओपनिंग कैपिटल 1 लाख है, तो इंटू 6% IOC है,
तो 6/100 किया तो आपका आईओसी आ गया 6000। अब कई बच्चे मेरे लेक्चर को देखते और सुनते हुए सोच रहे होंगे कि इनटू यहां टाइम फैक्टर क्यों नहीं आया। अब ध्यान से सुनिए इस टाइम फैक्टर के बारे में। वो टाइम फैक्टर मैं आपको बताता हूं। एक पार्टनर का नाम है ए की ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल को 4000 है। बड़े ध्यान से सुनना। और सारा साल ये फर्म में 4 लाख ही रही, परंतु ऑन 1 जुलाई ही introduced a fresh capital of ₹2 lakh। अब देखिए यहां क्लोजिंग कैपिटल का फंडा ही नहीं आया, जो क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया। उसने एक पार्टनर है, 1 अप्रैल को उसकी 4 लाख की कैपिटल दी, 1 जुलाई को वो 2 लाख रुपया फ्रेश कैपिटल यानी कि एडिशनल कैपिटल और लेकर आ गया। अब 1 जुलाई को ए की कैपिटल बढ़ गई, तो ऐसे में क्या होगा, 1 अप्रैल से 30 जून तक उसकी कैपिटल 4 लाख रही। तो आईओसी फ्रॉम अप्रैल टू जून 4 लाख, इफ रेट गिवन इज 6% इंटू ये 3/12 हो जाएगा, क्योंकि 4 लाख कैपिटल बिजनेस में 3 महीने रही। फिर अप्रैल टू जून 3 महीने, फिर आईओसी दैट इज जुलाई टू मार्च। अब देखिए ये बढ़ के 6 लाख हो गई, क्योंकि जो 4 पहले थी वो तो अभी भी बिजनेस में है, अब ये 6 हो गई। तो अगला इंटरेस्ट 9 मंथ का उसको 6 लाख पे मिलेगा। तो ये हो गया 6/100 इंटू 9/12। दिस यू कैन कैलकुलेट, बी केयरफुल। इसका अच्छा तरीका तो ये है, अब देखिए अगर पूरा साल वो 1 लाख रहती तो मेरे को इंटू नंबर ऑफ मंथ करने की कोई जरूरत नहीं है, पर आपकी कैपिटल बढ़ गई, बढ़ी आपकी जुलाई में, इसलिए जुलाई के बाद उसको बढ़ी हुई कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिला। पर कई वीडियोस में आप देखेंगे जो मेरे और भाई बना रहे होंगे, अगर आप इसको करना चाहें दूसरे तरीके से तो पहले 4 लाख के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट दे दो, 4 लाख इंटू 6/100, उसमें टाइम फैक्टर ना डालो, और बाद में 2 लाख के ऊपर 9 महीने का दे दो। बात तो एक ही है, क्योंकि 4 लाख के ऊपर 3 महीने का इसमें है और 4 लाख के ऊपर 9 महीने का इसमें है। बात तो एक है, आपका रिजल्ट वही आएगा। परंतु जब आपके न्यूमेरिकल में एडिशनल कैपिटल आ जाए ओपनिंग कैपिटल के बाद, तो बी केयरफुल, आपको इस तरीके से अपने आईओसी को कैलकुलेट करना है। दिस इज द डे टुडे which I did in my very proper manner. I'll be putting my 5th video very soon, so that may I be in touch with you. I'm going to get you the full detail as per my knowledge. Hope you will enjoy my video. Thank you very much.